My lovely students, welcome to Methodological. In this session, we will be discussing questions from the second shift of 21st December SNAP examination. And since you all were requesting, I don't have all the questions from that shift, but jitne bhi questions hain, we'll be discussing those questions. And if you have any doubts or concerns or queries or questions, additional questions, जो कि तुम्हें याद हैं, you can mention those questions in the comments, or you can also message me on Telegram at ADITYAKT. So the first question, two finite sets of m and n elements, number of elements in the power set of the first is 48 more than the total number of elements in the power set of the second set. So you have to find m and n ka values in the particular order. So if let us say there is a set A which has elements A, B and C, three elements are there. So power set contains all the subsets. Power set contains all the subsets, including the null set as well as the set itself. Okay. So कितने subsets होंगे? There will be a null set. ठीक है, there will be a set containing one elements, two elements, and all the three elements, which is the set itself. So number of sets कितने हो गए हमारे पास? In total 8. Basically, since there are three elements, so every element has two choices. Either it will be present in the subset or it will not be present in the subset. So total number of subsets will be 2 to the power n or 2 to the power 3 in this case. Okay? So if there are n elements, number of subsets will be 2 to the power n, or number of elements in the power set will be 2 to the power n. Number of elements in the power set will be 2 to the power n. Okay? This is power set of A. क्या क्लियर है? तो क्वेश्चन इज सेइंग कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? फॉर द फर्स्ट केस 2 टू द पावर m, सेकंड केस में 2 टू द पावर n, एंड द डिफरेंस इज 48. 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, दैट इज 48. सो क्या वैल्यूज हो सकता है? दिस कुड बी 64 एंड 16. 64 माइनस 16 इज 48. एंड इफ दिस इज 64 यानी 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 4, तो m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. आंसर विल बी 6,4 इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. अच्छा, ऑप्शंस मैंने क्रिएट किए हैं, तो करेक्ट आंसर के अलावा बाकी ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं एग्जाम में. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी क्लियर. ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि पावर सेट होता क्या है. अगर ये नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ये चीज पता होनी चाहिए थी. Second question, the side of a given square is 80 centimeter. The midpoints of its sides are joined to form a new square. Again, the midpoints of the sides of this new square is joined to form another square, and this process is continued indefinitely. यानी कि infinitely many times this process को continue किया गया. Then we have to find the sum of all the perimeters of all the such squares. So पहले तो फंडा समझ लेते हैं इसके पीछे का कि लॉजिक क्या होगा, कैसे पेरीमीटर हमारा डिक्रीज करेगा. सो एक स्क्वायर बनाया हमने, फिर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. And since this is a square, so all sides will be equal. Okay, let us say कि साइड लेंथ हमारी थी 1 1 1 1. ठीक है, 80 को भी रहने देते हैं बिकॉज 80 के बजाय कोई और टिपिकल वैल्यू भी हो सकता था. तो पहले पैटर्न समझते हैं. सो इफ दीज साइड्स आर, साइड नहीं, हमने एक्चुअल में मिड पॉइंट्स, तो हमने साइड को तो 2 माना है, साइड इज 2, बट हाफ द साइड इज इक्वल टू 1. ओके, सो इफ दैट इज इक्वल टू 1, दिस एंगल इज 90 एंड दीज टू आर इक्वल, ऑब्वियसली बिकॉज स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उनका मिड पॉइंट्स को मिला दोगे तो यानी कि जो हमारा हाफ द साइड विल आल्सो बी इक्वल. सो इफ दीज टू आर इक्वल, वन एंगल इज 90, तो अदर टू एंगल्स क्या होंगे? 45 एंड 45. सो दिस बिकम्स आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड विल बी, रेशियो क्या होगा साइड्स का? 1:1:√2. सो दिस विल बी √2. सो इनिशियल पेरीमीटर इज 2 + 2 + 2 + 2, 8 है पेरीमीटर इनिशियल. ठीक है, और फिर पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्मॉलर वाला स्क्वायर का? दैट विल बी 4√2. अब इसके अंदर फिर से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर एक स्क्वायर फॉर्म करते हो तो वहां भी रेशियो तो सेम ही रहेगा. सेम स्टोरी विल कंटिन्यू. ठीक है, सो दिस टोटल वाज √2. सो हाफ दिस साइड यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 1/√2, √2/2 विच इज 1/√2. दिस विल आल्सो बी 1/√2. ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? 1:1:√2. तो दिस साइड विल बी इक्वल टू √2 into 1/√2, which will be equal to 1 only. So now perimeter will be 4. 8, then 4√2, then 4. तो perimeter हमारा कैसे चेंज हो रहा है? 8 for the larger square, then 8 into 1/√2, which is 4√2, then 4√2 into 1/√2, which will be 4, and so on. Next will be 2√2,
and then it will be 2 and so on. यही पैटर्न कंटिन्यू करेगा. अब एक्चुअल कंडीशन में the side of a given square is 80 centimeter. तो perimeter of the largest square will be 80 into 4, 320. For next square, this will be 320 by root 2. Then it will be 320 by root 2 whole square. And this will continue. Infinite GP बन रहा है, तो sum क्या आएगा? Sum of infinite GP is first term upon 1 minus common ratio. और common ratio आ रहा है हमारा 1 by root 2 का. तो 320 upon 1 minus 1 by root 2. 1 minus 1 by root 2. Which becomes 320 upon root 2 minus 1 upon root 2. So this becomes 320 root 2 upon root 2 minus 1. रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को तो रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो वैल्यू आ जाएगा हमारा 320 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 दैट विल बी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. तो ये आंसर आ जाएगा 320 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1. ऑप्शन में डायरेक्टली ऐसा तो नहीं दिया है, रूट 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाओ. तो 320 इंटू 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर, दिस विल बी अवर आंसर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट बिकम्स 3 times. फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज. सो इनिशियली प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इनिशियल दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लेट अस से सेलिंग प्राइस इज एस, कॉस्ट प्राइस इज सी, एस माइनस सी हो जाएगा. और फाइनली इन द सेकेंड कंडीशन प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट विल बी, सिंस सेलिंग प्राइस इज डबल्ड तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2s, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रह रहा है, तो 2s माइनस सी इज द प्रॉफिट. एंड नाउ प्रॉफिट इज 3 times ऑफ इनिशियल प्रॉफिट, तो 2s माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 3 times ऑफ s माइनस सी. सो 2s माइनस सी इज इक्वल टू 3s माइनस 3c. सो 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 3c माइनस सी, यानी कि s इज इक्वल टू 2c. तो s और c यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा 2/1. So if 1 is the cost price, 2 is the selling price. So profit कितने का है? प्रॉफिट भी 1 का ही है, कॉस्ट प्राइस भी 1 है, प्रॉफिट भी 1 है, तो 100% is the profit percentage. ऑप्शन A will be the answer. Okay, 100%. Option A will be the answer. Was this exact question in the exam? Mention in the comments. Okay, and if you're liking the content, then make sure to hit the like button as well. Next question. The compound interest on a certain principal at a certain rate of % per annum for the second year and third year are 4400 and 4840 respectively. तो find the principal and rate % per annum. Now देखो सिंपल सी चीज है, 4400 is the rate is the interest for second year और 4840 इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का. कितना डिफरेंस है हमारा? 4400 और 4840 में डिफरेंस आ रहा है 440 का. एंड दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड ईयर. सो इंटरेस्ट इज 10%. Isn't it so? इंटरेस्ट इज 10%, तभी तो हमारा 4400 पे 440 ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है इसी की वजह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है. एंड 440 इज 10% ऑफ 4400. सो रेट परसेंट विल बी 10% ओनली. ओके, रेट परसेंट विल बी 10%. अब सेकंड चीज हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल. ओके, तो 4400 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है फॉर द सेकंड ईयर. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इज 4840 और रेट परसेंट हमारा 10% का है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? लेट अस से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वाज 10 यूनिट्स या x होता मान लो, ठीक है. सो इफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वाज x, तो 10% इंटरेस्ट फर्दर लगेगा सेकंड ईयर में, यानी कि x प्लस 0.1x. तो 1.1x दिस इज इक्वल टू 4400, ठीक है. या फिर इनिशियली 10 मान लेते हैं, 10 यूनिट्स है, 1 यूनिट इंटरेस्ट होगा, 11 यूनिट इज इक्वल टू 4400, 1 यूनिट आ जाएगा 400, 10 यूनिट्स विल बी 4000. तो हमारा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 4000. And this is 10% of the principal. So 10% of principal, this is equal to 4000. So principal will be equal to 40,000 rupees. Principal is 40,000 and rate of interest is 10%. So this will be the answer. Okay. क्या है clear है? Next question. Two runners run in the opposite direction starting from the same point along a circular track at 7 a.m. They started running at 7 a.m. The faster runner meets the slower runner at 7:30 a.m. for the first time. If the faster runner completes the round at 7:50 a.m.,
then at what time will the slower runner complete a round? So basically there is a circular track, and let us say this is the starting point from where they are starting. ठीक है, this is the faster runner और ये slower runner है हमारा. Faster runner is meeting slower runner after 30 minutes at 7:30. तो 7:30 पे डेफिनेटली लेट अस से दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग, तो डेफिनेटली फास्टर रनर ने ज्यादा ट्रैवल किया होगा, तभी तो फास्टर है. ओके, एंड स्लोअर रनर मस्ट हैव ट्रैवल्ड द रिमेनिंग डिस्टेंस. एक राउंड दोनों ने मिलकर कंप्लीट किया होगा, isn't it so? तो एट 7:30 दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. So distance traveled in 30 minutes by faster runner, and then at 7:50 the faster runner completes the complete round. यानी कि remaining distance, यानी कि distance traveled by the slower runner is completed by the faster runner in 20 minutes. 15 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट किया है और 20 मिनट्स में बचा हुआ डिस्टेंस कंप्लीट किया है. 30 मिनट्स में ऑलरेडी ही मेट द स्लोअर रनर. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर रनर, स्लोअर और फास्टर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर रनर इन 30 मिनट्स is traveled by faster runner in 20 minutes. Okay, this distance was traveled by slower runner in 30 minutes. Let us say this point is, the starting point is P, this point is Q. ठीक है, तो this distance traveled by the slower runner in 30 minutes is traveled by the faster runner in 20 minutes. तो जो distance faster runner ने 30 minutes से travel की है, this distance, इसको travel करने में टाइम कितना लगेगा slower वाले runner को, क्योंकि इसको भी तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम का रेशियो क्या आ रहा है हमारा? 3:2 आ रहा है, 3:2 आ रहा है. ठीक है, सो सेकंड केस में भी रेशियो तो टाइम का सेम ही रहेगा, बिकॉज स्पीड तो रेशियो तो सेम है. ठीक है, स्पीड का रेशियो सेम ही है स्लो और फास्ट रनर का, तो टाइम का रेशियो भी 3:2 होगा सेकंड केस में भी. 2 यूनिट्स की वैल्यू है 30 मिनट्स, बिकॉज 30 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया फास्ट रनर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15. तो 3 × 15, 45 मिनट्स विल बी द टाइम टेकन बाई स्लोअर रनर इन कंप्लीटिंग the remaining distance. तो 45 plus 30 total time will be 75 minutes. Okay, 75 minutes is आंसर आ जाएगा 7 + 75 minutes 8:15 AM, ऑप्शन सी. या तो ऐसे सोच सकते थे, या फिर पूरा राउंड देख लेते कि पूरा राउंड कंप्लीट करने में देखो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम का रेशियो फॉर स्लोअर एंड फास्टर रनर इज 3:2. सो जो टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो जस्ट उसका उल्टा होगा. ठीक है, यानी कि स्पीड का रेशियो बिटवीन स्लोअर एंड फास्टर रनर विल बी 2:3. ओके, और टाइम का रेशियो 3:2 ही रहेगा. सो कंप्लीट करने में राउंड फास्टर रनर इज टेकिंग 50 मिनट्स. ओके, तो स्लो रनर को टाइम कितना लगेगा? टाइम का रेशियो होगा 3:2, 2 की वैल्यू 50, 3 की हो जाएगी 75. सो इन 75 मिनट्स ही विल बी कंप्लीटिंग द कंप्लीट राउंड. सिंपल क्वेश्चन, एक बार डायग्राम बना लिया और अच्छे से बातों को समझ लिया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mark price of an article is ₹1,000. The shopkeeper allows 10% discount on the mark price of the article in the first year. From next year, 2% additional discount is given on the discounted price. To find the net discount on the article after 4 years. So 10% is discount for the first year, 2% further on the second year, 2% further in the third year, 2% further in the fourth year. So net discount of these 4 discounts question पूछ रहा है. ठीक है, तो पहले दो डिस्काउंट्स का नेट डिस्काउंट निकाल लेते हैं. और डिस्काउंट इफ दे आर डिस्काउंट्स आर A% एंड B%, सक्सेसिव डिस्काउंट्स है. डिस्काउंट यानी कि डिक्रीज, तो निगेटिव में, तो नेट डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा? नेट डिस्काउंट विल बी A + B - AB by 100%. ओके, सो 10 और 2 को पहले ले लिया, तो 10 + 2 - 10 × 2 by 100, so this becomes 12 - 0.2, so 11.8% is the effective discount for these two. Similarly for 2 and 2, 2 + 2 - 4 by 100, so this becomes 3.96%. Now take net discount of these two, 11.8 and 3.96. So 11.8 plus 3.96 minus 11.8 into 3.96. तो 11.8 into 3.96 को रफली मान सकते हो 11.8 into 4, because 3.96 is almost 4. इनका सम आ जाएगा हमारा 15.76 minus this is 11 4s 44, 47.2 by 100, तो 0.47, तो रफली वैल्यू आ रहा है हमारा 15.29%. ठीक है, दिस विल बी अवर आंसर 15.29%, ऑप्शन सी. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राहुल रन्स अ बुक शॉप. ही रिसीव्ड 480 साइंस बुक्स. तो साइंस बुक्स आर 480.
Art books are 192 and mathematics books are 672. He wishes to arrange these books in minimum number of stacks such that each stack consists of the books of only one subject. एक स्टैक में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक्स होंगी एंड नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज द सेम. सो अगर नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज सेम एंड वी हैव टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, so number of books in each stack should be highest common factor of these values. So you have to find out highest common factor of these. ठीक है, that will be equal to number of books in each stack. So क्या वैल्यू आ जाएगा? 96 will be our HCF. HCF will be 96. So number of stacks will be equal to 480 by 96 plus 192 by 96 plus 672 by 96. So this will be 5 plus 2 plus 7, which is equal to 14 stacks minimum will be there. कम से कम 14 stacks आएंगे, इससे ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, तो 14 will be the answer. Okay, clear है? Next question. In how many ways we can distribute 7 different things to 3 different people such that some of them get nothing at all? अब लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट क्वेश्चन यही था मोस्ट प्रॉब्ली कि 7 डिफरेंट थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 डिफरेंट पीपल. थिंग्स भी डिफरेंट है, पीपल भी डिफरेंट है, और वी हैव टू फाइंड आउट कि कंडीशन दैट सम ऑफ देम कैन गेट नथिंग एट ऑल. ठीक है, सम ऑफ देम यानी कि कम से कम एक पर्सन ऐसा जरूर होना चाहिए विच इज गेटिंग नथिंग एट ऑल, एटलीस्ट 1 पर्सन. ओके, सो देयर विल बी 2 केसेस. फर्स्ट केस, since there are total 3 persons, first case is 1 person gets 0 items. 0 items. Second case could be 2 persons get 0 items. ठीक है, अब ऑब्वियसली थर्ड केस नहीं बनेगा कि 3 persons get 0 items बिकॉज 3 ही पर्सन हैं इन टोटल, सबको 0 मिल जाएगा तो 7 थिंग्स बांटोगे किसको? तो डेफिनेटली देयर विल बी 2 केसेस ओनली. फर्स्ट केस में कितने नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे? 1 person is getting 0 item. ठीक है, सो इफ 1 person is getting 0 item, let us say persons are A, B and C. So if A is getting 0 items, so B और C को मिला के मिलेंगे 7. ठीक है, if C will be getting 0 items, then A and B को मिला के मिलेंगे 7. या फिर B will be getting 0 items, तो A और C को मिला के मिलेंगे 7. यानी कि we have to first choose which person will be getting 0 items because तीनों different people हैं. तो 3C1 will be number of ways of choosing that person. ठीक है, अब तुमने एक पर्सन को चूज कर लिया, तो फॉर रिमेनिंग 2 persons, between remaining 2 persons, all the 7 items will be distributed. So for each item we have 2 choices now. ठीक है, so if there are 7 items, for each item we have 2 choices. ठीक है, let us say हमने सेलेक्ट किया था A को, A got 0 items. So if A has received 0 items, so now B and C में से किसी एक को हर एक आइटम मिलेगा. So for every item there will be 2 choices. Total items are 7. तो total cases will be 2 to the power 7. Total cases will be 2 to the power 7. Isn't it so? ठीक है, बट यहां पे 2 ऐसे केसेस आएंगे. One case will be there. One case when all items will be received by B. One case will be there when all items will be received by C. और हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 person गेट 0 आइटम्स. और अगर सारे आइटम्स बी को मिल जाएंगे तो फिर सी को मिलेंगे 0, सारे सी को मिल जाएंगे बी को मिलेंगे 0. तो हमें वो वाला केस नहीं चाहिए, तो इन 2 केसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, दीज 2 केसेस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. तो हमारे केसेस व्हेन 1 person गेट्स 0 आइटम्स विल बी 3C1 into 2 to the power 7 minus 2. Second case when 2 persons get 0 items. So if 2 persons are getting 0 items, so third person will be getting all the items. ठीक है, थर्ड पर्सन विल बी गेटिंग ऑल द आइटम्स. तो एक पर्सन को हमें सेलेक्ट करना है जिसको कि सारे के सारे आइटम्स मिल जाएं. सो इट कुड बी ए, इट कुड बी बी. ए को मिलेंगे तो बी और सी को 0 मिलेंगे, सी बी को मिलेंगे तो ए और सी को 0 मिलेंगे, या फिर सी को मिल जाएंगे तो ए और बी को 0 मिलेंगे. सो देयर विल बी ओनली 3 केसेस, बेसिकली 3C1 सिलेक्शन ऑफ दैट पर्सन. तो फर्स्ट केस में कितना नंबर आ रहा है हमारा? 3 into 2 to the power 7 minus 2, which will be 128 minus 2, 126. That is 378. और सेकंड केस में वैल्यू आ रहा है 3. तो टोटल केसेस विल बी 378 plus 3, 381. 381 विल बी द आंसर. प्यारा सा क्वेश्चन था. ओके, और एग्जाम में इसमें गलती होने का डेफिनेटली स्कोप है. अच्छा क्वेश्चन था, आई बिलीव समझ में आएगा. और फिर भी कहीं क्वेश्चन में डाउट रहता है तो ऑलवेज मेक श्योर टू आस्क द डाउट. ओके, देखो हमने क्या किया यहाँ पे. हमारा पर्पस ये था कि 7 डिफरेंट थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड 3 डिफरेंट पीपल such that some of them get nothing at all. तो हमने 2 केसेस बनाए. फर्स्ट केस 1 person will be getting nothing at all, 1 person will be getting 0 items. Second case 2 person will be getting 0 items. So if 1 person is getting 0 item, तो we have to select that person. 3C1 तरीके से हमने सेलेक्ट किया. फिर for every item there are 2 choices. 2 to the power 7 will be total cases, but out of these we have to reject 2 cases because in 2 cases 1 person will be getting all the items. यानी कि effectively
2 persons will be getting 0 items, जो कि हमारा केस नहीं है, दैट इज वाई उनको रिजेक्ट करना जरूरी है. टोटल वेज आ गया 378 इन दिस केस. सेकंड केस में 2 पर्सन विल बी गेटिंग 0 आइटम्स, यानी कि एक पर्सन को सारे आइटम्स मिल जाएंगे. 3 केसेस बनेंगे, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा. 378 प्लस 3, आंसर विल बी 381. ओके, next question. Rahul stays in Noida in a joint family comprising of his parents, uncle, aunt, an elder sister and a cousin 2 years younger than him. Okay. Rahul completed his MBA in 2013 from a reputed B school. That year the average age of Rahul's family was 35. अब थोड़ा सा लैंग्वेज रेफरेंस हो सकता है कहीं पे, बट आई बिलीव ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में था, ऑलमोस्ट वैल्यूज यही थी. ठीक है. सो दैट ईयर द एवरेज एज ऑफ Rahul's family was 35. Rahul got married in 2015 and 2 years after he became father. If the average age of Rahul's family in 2019 remains same as in 2013 and Rahul is older than his wife by 2 years, at what age did Rahul graduate MBA? Okay. So number of persons कितना है initially? Initially Rahul is there. Parents, which implies mother and father, so 2 members. Then uncle, aunt, 2 members. Then an elder sister and a cousin, 2 members. Total members हो गए 7. Okay, and in 2013 the average was 35 years. ठीक है. तो सम क्या आ जाएगा 2013 में? सम ऑफ एजेस will be 7 into 35. Okay. Rahul got married in 2015 and 2 years after he became father. So got married in 2015 and became father in 2017. If the average of Rahul's family in 2019 remains the same as in 2013, 2019 में भी average क्या है? Average is same only. Average is 35. But number of members तो increase कर गया है ना. Number of members अब 7 नहीं है, कितने हो जाएंगे? Because he became father, तो 1 member increase किया, child born हुआ. Secondly, he got married, तो एक और member increase किया. तो total number of members will be 9. Sum क्या आ जाएगा? Sum will be 9 into 35 in 2019. ओके. अब 2013 और 2019 में एक चीज ऑब्जर्व करो. ठीक है. 7 मेंबर्स तो सेम है. ठीक है. सो एंड फॉर ऑल दो 7 मेंबर्स उनका एज कितने से इंक्रीज करेगा? 6 ईयर्स का गैप है बिटवीन 2013 एंड 19. देयर इज अ गैप ऑफ 6 ईयर्स. सो नाउ द एवरेज एज ऑफ दीज 7 पर्संस विल बी कितने से इंक्रीज करेगा? 6 से इंक्रीज कर जाएगा एवरेज भी, बिकॉज सबका एज 6 से इंक्रीज किया है. तो नाउ एवरेज फॉर दीज 7 पर्संस विल बी 41. सम ऑफ एजेस ऑफ दीज 7 पर्संस विल बी 7 into 41. 9 into 35 सारे मेंबर्स का एज का सम है. 7 into 41 इज सम ऑफ एजेस ऑफ 7 मेंबर्स. तो कौन कौन से मेंबर्स को हमने हटा दिया? वाइफ ऑफ राहुल एंड चाइल्ड ऑफ राहुल. ठीक है. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज, तो यहां से हमें वाइफ और चाइल्ड की एज का सम मिल जाएगा. और चाइल्ड की एज हमें पता है 2017 में राहुल बिकेम फादर, 2019 में एज ऑफ चाइल्ड विल बी 2 years. ठीक है. सो दिस डिफरेंस विल बी 9 into 35 minus 7 into 41. सो दिस इज 9 into 30, 270, 315 minus 287. So that is equal to 28. 28 is the sum of wife and child. Now age of child, wife and child. Age of child is 2 years. So wife का age आ जाएगा 26. Wife is aged 26. And age of Rahul is 2 years more than wife. तो 2019 में age of wife is 28. So age of Rahul, एक सेकेंड सॉरी, वाइफ का एज प्लस चाइल्ड का एज का सम था 28, वाइफ का एज है 26. अब यही दूसरी जगह नोट डाउन करने में गड़बड़ कर रहे थे ना. 26 हो गया. एंड इफ वाइफ का एज इज 26, तो राहुल का एज आ जाएगा 28, बिकॉज राहुल इज 2 years ओल्डर देन हिज वाइफ. 28 हो गया. 2019 में क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट एज डिड राहुल ग्रेजुएट MBA, यानी कि 2013 में व्हाट वाज एज ऑफ राहुल. सो दैट विल बी 6 years लेस. 28 minus 6, 22 years विल बी एज ऑफ राहुल व्हेन ही ग्रेजुएटेड. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. 22 will be the answer in this case. Next question, if cos x is equal to root 2 minus 1 sin x, then find sin x plus cos x. अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा एक दो लोगों से, बट द डाउट इज कि ये क्वेश्चन या तो इतना आसान है, बहुत ही आसान है, बिकॉज अगर इफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन. अदरवाइज कुछ डिफरेंस है तो अलग की बात है. ठीक है. बिकॉज cos x is equal to root 2 minus 1 into sin x. So basically this becomes cos x is equal to root 2 sin x minus sin x. sin x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो sin x plus cos x becomes equal to root 2 sin x. So if this question was like that, तो straight away फिर तो आंसर हमारा आ गया sin x plus cos x equal to root 2 sin x, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द आंसर.
क्या ही क्लियर है? अगर क्वेश्चन कुछ और डिफरेंट था तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? cos x हमारा √2 - 1 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई √2 - 1, रैशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई बाई √2 + 1, सो दिस बिकम्स √2 + 1 अपॉन 1 एंड साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज tan x, मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि tan x की वैल्यू मिल गई हमें, tan x इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा अगर √2 + 1 है तो बेस विल बी इक्वल टू 1, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 का स्क्वायर विच विल बी 3 + 2 √2 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 √2, ठीक है, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां से कुछ भी पूछा होगा क्वेश्चन में तो तुम आंसर कर पाओगे, या कि सारे के जो हमारे रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकाल पाओगे, ठीक है। दिस वाज डिटो क्वेश्चन, तब तो फिर कुछ भी नहीं करना था, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ऐसे आंसर हो रहा था, बट आई एम श्योर कि कुछ तो डिफरेंस रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। कमेंट में मेंशन करना कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था, बिकॉज तब तो बहुत ही ईजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if mod of x greater than equal to 3 and mod of x minus 1 less than equal to 5, then find range of x satisfying this inequality. So if mod of x is greater than equal to 3, ठीक है, सो इधर दो केसेस बनेंगे, या तो x will be greater than equal to 3 यूनियन x will be less than equal to -3. सेकेंड केस, mod of x minus 1 less than equal to 5. सो x का जो 1 से डिस्टेंस है that should be less than equal to 5. तो 1 + 5 is 6 and 1 - 5 is -4. So x should be between -4 and 6. Both these inequalities have to be satisfied, यानी कि x should be element of -4 and 6 and also x should be greater than equal to 3 and less than equal to -3. तो आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा x should be from -4 to -3 union from 3 to 6. If this was the exact question, then this will be the answer. Okay, clear है? If this was the precise question, तो फिर ये आंसर हो जाएगा हमारा। Next question, Ram, Shyam and Mohan invested amount in the ratio 3:4:6 and profit was distributed among them in the ratio 2:3:4. Then find the ratio of the time for which they invested their capital. So time का रेशियो पूछा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:4:6 एंड प्रॉफिट का रेशियो इज गिवन एज 2:3:4. तो टाइम का रेशियो क्या होगा? सो टाइम विल बी इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट यानी कि टाइम का रेशियो आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2/3 इज टू 3/4 इज टू 4/6, ठीक है, और 4/6 इज ऑल्सो 2/3 ओनली, सो ये भी फाइनल रेशियो भी हमारा 2/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 12 सो दैट रेशियो हमारा इंटीजर मिल जाए, सो दैट विल बी 8:9:8. दिस विल बी द आंसर, 8:9:8. रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल विल बी 8:9:8. नेक्स्ट देयर वाज अ सीरीज क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या पूछा था बट वो तो श्योर नहीं है, बट सीरीज था, तो 264 111 60 43. ओके, सो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे हमारा? द डिफरेंस इज बिटवीन 264 एंड 111, द डिफरेंस इज 151 153. देन डिफरेंस आ रहा है हमारा 111 एंड 60 के बीच में 51 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 17 का, तो 153/3 इज 51, 51/3 इज 17. ओके, तो नेक्स्ट टर्म था, पीछे वाला टर्म था, क्या एग्जैक्टली था, बट पैटर्न ये तो हमारा यही बन रहा है। तो नेक्स्ट टर्म अगर पूछा होता तो क्या होता वैल्यू हमारा? ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? -17/3, 43 - 17/3, दिस विल बी 37.33. ठीक है, -17/3 कर रहे हो, क्लियर है? या फिर इससे पीछे वाला टर्म पूछा होगा तो वैल्यू क्या होगा हमारा? दैट विल बी 153 × 3 यानी 459. सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट मिला है, तो क्या वैल्यू रहा होगा? 450 + 260 723. क्या ही क्लियर है? ओके, ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सच DI पे एक क्वेश्चन था जिसमें कि क्वेश्चन वाज आस्किंग विच ईयर्स हैव द सेम एवरेज एज 2016 एंड 18. 2016 का वैल्यू वाज प्रॉब्ली 55, 2018 65, सो एवरेज विल बी 60. और फिर 2022 और 23 का भी एवरेज हमारा 60 ही आ रहा था. सो आंसर वुड हैव बीन 2022 एंड 2023. देयर वाज अनदर टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, इसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है, और आंसर वाज प्रॉब्ली 80 एंड देयर वाज अ ग्रिड पजल क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जिनके की डेटा मिला मुझे. सो आई हैव डिस्कस्ड दोज क्वेश्चंस जिनका डेटा मिल पाया. और अगर तुम्हारे पास किसी और क्वेश्चन का भी डेटा है तो कमेंट में मेंशन करना, आई विल डिस्कस दैट एज वेल, या फिर उसका सॉल्यूशन मैसेज कर देंगे. ठीक है, मैसेज में डिस्कस कर लेंगे. So that's all, and if you like the session then make sure to hit the like button as well, and if there's any questions or queries you can always message, and if you've not already subscribed to the channel then make sure to check out the content and subscribe to the channel as well. That's all, bye bye, take care and keep learning.